Welcome back to a new class. So today we are discussing a very important topic from the chapter electricity. So as you can see on the screen, we will be starting with heating effect of current. So in our previous classes we have completed all the other topics from this chapter electricity. So this is I think one of the least topic which are left in this chapter. So let's start with this topic, heating effect of current. So first we have to understand what is Joule's law. So as you can see, we are using a number of things in our daily life which produce heat with the help of electricity. So I hope you can give the examples. Just pause the video and just write down in the comments, say what are the appliances we generally used to produce heat from electric current. Just pause this video and write down in comments. Okay, so now let's move on. Let me tell you the example of appliances, like you can say electric heater, which is generally used to heat some kind of object. Iron we generally used to iron your school dress or anything, any clothes, to make it in a proper look. Another thing we generally use is geyser to heat the water. In winter we generally use geyser through which we can heat up the water. Oh, so there are a number of electric kettle are there, and there are a number of things. Electric induction oven. There are a number of things where we generally use electricity to produce heat. But that all these things are basically follows a particular law, that is Joule's law. Okay, so that's why we have to understand what is Joule's law. We generally use our daily life, right? So let us understand. When an electric current is passed through a conducting wire, the electrical energy is converted into heat energy. When an electric current is passed through a conducting wire, the electric energy is converted into heat energy. This effect is called as heating effect of electric current, right? It is also called as Joule heating. Okay, because Joule first observed this, or he just explained this phenomena. Okay, so Joule's law gives us Q is equals to I square RT. It's a very famous expression. After E square, E is equals to MC square. So Q is equals to I square RT. In this expression, what is Q? Q is Joule, or the amount of heat. Joule is the unit of Q. Q is what? Q is the amount of heat produced because of the flow of current I. R is the resistance of the conducting wire, and T is the temperature. T is the time taken. Okay, so the heat will be measured in joule, current will be measured in ampere, R will be in ohm, and T will be in second, as we all know. So now it can also be written as Q is equals to I square RT divided by J. But in that case, Q becomes calorie. I will be in unit of ampere, R will be in ohm, and T in second. So see, Q is in calorie now. Okay, so if you want to convert the unit from SI to CGS, you have to use one constant, that is J, that is called as Joule's constant. Okay, the value is, tell me in the comment, the value of J is 4.2 approximately. Now, what is the cause of heating effect of current? There will be this kind of question in your mind, right? Why this heating effect occurs? Because of the flow of current. Let me tell you. When a battery is connected to the ends of a conductor, electric field is set up. ठीक है, आपने एक कंडक्टर के एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वहाँ पे, है ना? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लोज होना स्टार्ट कर देंगे. दे अंडरगो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस एंड द एटम्स इंक्रीजेस एंड हेंस टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसको मैं सिंपली अगर कहूँ तो क्या है, देखो, आप कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है? कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. अब इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा ऑब्वियसली कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर किससे बना है? एटम से बना है. कंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके पास चार्ज है, आयोन्स है.
अब बाहर से हम अगर बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, वो कंडक्टर के जो एटम्स है, कंडक्टर के जो आयन्स है, कंडक्टर के पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। वो तो ऐसे फ्लो नहीं कर पाएगा फ्रीली, है ना, तो इसके थ्रू फ्लो करेगा, एटम्स के थ्रू, आयन्स के थ्रू। तब ये जब बाहर से हम बैटरी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं थ्रू कंडक्टर, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे क्या करेंगे, एटम्स और आयन्स के जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देंगे। अब वाइब्रेशन इंक्रीज होना मतलब ये कंडक्टर के पास जो इंटरनल एनर्जी था पहले, वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब दैट विल बी इफेक्ट द टेम्परेचर, ओके, दैट विल इफेक्ट द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर विल राइज। अब टेम्परेचर राइज करना मतलब भी क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना। सो दिस इज द रीजन. The one more thing you should note, that is the course of electron through resistor is like that of stone falling in water. ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो कि एक स्टोन जब वाटर के थ्रू फ्लो फॉल करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक रेजिस्टेंस फील करता है लाइक दैट ओनली। जैसे कि स्टोन ऐसे जब वाटर के थ्रू फ्लो करता है तो वाटर उसको रेजिस्ट करता है ना फ्लो करने के टाइम पे, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी रेजिस्ट करता है कंडक्टर, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट. सिमिलरली एक्चुअली पावर के डेफिनेशन आप लोग शायद जानते हो. व्हाट इज पावर? पावर इज व्हाट? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, or you can see simply rate of work done. So here we are considering electric power, right? So that's why the definition is the rate at which work is done by the electric current, okay, by the electric current. So P is equals to VI. Similarly P is equals to I square R. So P is equals to V square by R. ठीक है, these are the different equations. So power के basic जो equation है वो है P is equals to VI. अब ओम्स लॉ को यूज करके यू कैन सिंपली रिप्लेस दैट वी आई. वी को अगर आप रिप्लेस करते हो फ्रॉम ओम्स लॉ, आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो इट विल बिकम, तो वो क्या आएगा देखो, इफ यू रिप्लेस वी इक्वल्स टू आई आर, तो पावर बेसिकली क्या है, पी इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, है ना. अब इस वी को आप रिप्लेस करोगे विद दिस फॉर्मूला, सो आई इंटू आर, right? So what it becomes? I square R. Similarly बाकी जो केसेस है वो भी आप देख सकते हो, P is equals to V square by R भी है. अब P का यूनिट क्या है पावर का? पावर का ऐसा यूनिट है वाट, ठीक है. वाट इज सिंपली जूल पर सेकेंड. लेकिन हम जनरली जो वाट है इसको, ये छोटा यूनिट होता है, लेकिन नॉर्मली जो मोटर वगैरह होते हैं, गाड़ी के जो इंजन्स वगैरह होते हैं, इनके पावर्स कैलकुलेट किए जाते हैं किलोवाट में या फिर HP पे. HP मतलब हॉर्स पावर. इट्स अ एंशियंट यूनिट, यू कैन से इट्स अ वेरी ओल्ड यूनिट, हॉर्स पावर, ठीक है. सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट एंड 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. सो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ कैन यू से दैट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम, ठीक है. Electric energy is the total work done by an electric current in a given time. So what is electric energy? E is equals to V into I into T, ठीक है. You just have to multiply power with time. Simply you just have to multiply power with time, you will be getting electric energy, ठीक है. तो total work done in a given time by an electric current is electric energy, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है. किलोवाट या फिर BOT में यूज़ किया जाता है, BOT, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, sorry, BOTU. So now another thing, we generally see this when suddenly current goes down or load shedding it happens, we generally check electric fuse, right? कि बाकी बाहर के सारे सब घर में करंट है लेकिन हमारे घर में करंट नहीं है. So इसका मतलब क्या है, शायद फ्यूज़ जल गया है.
So that's what it is, electric fuse. So electric fuse is a protective device used in series with an electric circuit or an electric appliance to save it from damage due to overheating produced by the strong current in the circuit or appliance. ठीक है, तो मान लो क्या है कि कोई भी कभी भी करंट का जो सप्लाई है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाने से अगर फ्यूज़ नहीं होता है तो वो बाकी सब अप्लायंस जो मान लो 220 वोल्ट में चलते हैं, लेकिन अभी वोल्टेज कितना हो गया 440 से, आई एम दिस नॉट हैपन्स बट स्टिल आई एम सेइंग यू टेलिंग यू। तो 440 वोल्ट में वो 220 वोल्ट वाला जो अप्लायंसेस हैं सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ करंट। ज़्यादा करंट आ गया अभी। अब ज़्यादा करंट मतलब क्या, जूल अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ Q इज इक्वल्स टू I²RT। करंट अगर ज़्यादा हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हीट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हीट अगर ज़्यादा हो गया तो ओवर हीटिंग की वजह से बाकी सारे जो अप्लायंसेस हैं वो जल जाएंगे, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस थिंग, सीरीज़ में पूरे पूरे हाउस का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उस सर्किट के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना बाकी सर्किट को। अगर ज़्यादा फ्लो हो गया करंट का तो ये क्या करता है, खुद जल जाता है, ठीक है। तो खुद जल के क्या करता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है सो दैट द ओवरफ्लो ऑफ करंट कैन नॉट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किससे बना हुआ होता है फ्यूज़? ऐसे वैसे सिर्फ कोई वायर लगा दिया तो नहीं होगा, ठीक है। फ्यूज़ का वायर अलग होता है, ठीक है। फ्यूज़ इज जनरली मेड ऑफ एलॉय ऑफ 63% टीन एंड 37% लेड, ठीक है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस तो ये क्या करता है, ओवरफ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है बहुत ज़्यादा। और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से बहुत जल्दी ये जल जाता है। मतलब थोड़ा ओवरफ्लो हो गया करंट तो थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ, उस थोड़े टेम्परेचर चेंज की वजह से ही ये मेल्ट हो जाता है और बाकी सर्किट बच जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम मतलब क्या, निकोल और क्रोमियम का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज नाइक्रोम वायर। तो क्यों ये यूज़ होता है नाइक्रोम वायर? अब आप हीटर को खोल के देखना, एक दूसरे टाइप का वायर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड नाइक्रोम वायर। इट इज़ यूज्ड बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। It has high malleability, it is not easily oxidized. So these are the most important points. That's why normally nichrome is used in case of electric heating appliances, ठीक है। So what is the reason? At a particular V, अगर पोटेंशियल मान लो 220 वोल्ट में ही सब चलता है, ठीक है, करंट प्रोपोर्शनल टू P और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर, ठीक है। तो एक इक्वल पोटेंशियल के लिए करंट और रेजिस्टेंस इस तरीके से P के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। नाउ हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस मोर इज द करंट ड्रॉन, ठीक है। सिमिलरली हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस लेस इज द रेजिस्टेंस। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस केस। Okay, so this is the end of this entire chapter electricity. I hope you enjoyed this chapter, and if you have any doubt you can write in the comment section, and you can also mail me, and we will discuss few problems in our next video. So if you have not subscribed my channel, definitely subscribe this. You will get lots of help from this channel, and until then, stay safe, stay healthy, see you soon.